Okay, good evening, everyone. Assalamu alaikum. Finally, the wait is over, and we are here with the long-awaited webinar session. This session is particularly a collaboration between Team Huawei Fusion Solar Pakistan, Baham Associates Pakistan, and DSG Energy Pakistan. So, okay. Starting with the general concept, what we are going to discuss here, I think every time someone would be thinking about switching to solar energy, तो जब भी इस energy shift की बात आती है, तो a lot of the consumers would be skeptical about if they are actually going to get the benefit out of it, अब चाहे वो financial benefit हो, technical benefit हो. So this is one of the question that we are going to answer today, that what if we tell you that everything you have in your solar power plant, every load, all of the load monitoring, energy monitoring, your load consumption, your generation, your export, everything you can have the access to just sitting in your houses remotely. So it would sound very amazing, right? So we are here to discuss this amazing Huawei innovation and technology today. We are going to talk about how to monitor and manage your solar power system remotely. So before I move forward, I'll just have a quick introduction about the diverse team experts we have today as panelists, जो कि हमें explain करेंगे कि how can we monitor our portal घर बैठे आराम से. So just starting with that, I am representing DSG Energy. I am a chemical and an energy engineer myself. So I'll be representing DSG Energy team as a host here. Then we have Talha Kashif. He's the assistant manager project and NOC head at DSG Energy. He's managing the after sales services and operation and management at DSG Energy. And we have recently set up a state-of-the-art NOC center along with the collaboration of Huawei Fusion Pakistan Solar. And you guys are welcome to come and witness the amazing technology yourself anytime. Then we will have Muhammad Awais Azmat. Mr. Azmat jo hai, Mr. Awais, he is a service and project manager at Team Huawei, representing Huawei Pakistan. At this webinar, he has 7 to 8 years of diversified commercial, industrial, and utility scale experience in power generation, and that ranges from thermal power generation to renewables. And then we will have Mr. Ansar Iqbal. He would be representing Baham Associates Pakistan. I think if anyone, please mute yourself so I don't hear my voice back. Okay, so Mr. Ansar would be representing Baham Associates Pakistan in this session. He has more than 7 years of experience in solar industry itself, in the field of designing, in the field of execution, the projects, and operation and maintenance of mega level solar power plant projects. So I'll be handing over the stage to Mr. Awais Azmat, and it's just before we move forward, it's just a request everyone that during the session, if you guys would have any sort of question, any query, so you are welcome to write it down in the chat box, and after the presentation we would be responding to your queries. Over to you, Mr. Awais. Assalamu alaikum. Hello everybody. Good evening to good afternoon to everybody here. And thank you, first of all, Ms. Ifsa, for introducing us here in this webinar. And thank you, everybody, to joining and have spare time for us. My name is Muhammad Awais Azmat, and I am representing Huawei Pakistan as Services and Operation Manager. And I have experience for thermal power plant to renewable energy. And I will come back to my topic right now. So can you tell me, everybody, you can see the screen? Now? You can see the screen? Yes. Okay, fine. Let's come to the topic for what we are here now. Actually, if we see in past 10 years, the power generation sector is developed a lot. And in this development, we have mainly to convert our power into digital energy, to remotely monitoring and remotely controlling our power generation and having data over there of our O&M platforms. तो इसको अगर हम एक जनरल व्यू में देखें तो ये जो O&M हमारा पावर जनरेशन का है, ये थर्मल पावर प्लांट में बहुत कॉम्प्लेक्स होता था. उसके बाद जब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हुआ तो इसके अंदर हमें डाटा जो है ये पावर जनरेशन का, इसकी इम्पोर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम हमें इसके बारे में पता चला कि इसको हम डाइवर्सिफाइड कैसे कर सकते हैं, इस डाटे से हम अपने O&M को कैसे ईज कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट कर सकते हैं, और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं रिमोटली. पहले हमारे पास एक आम तौर पे ट्रेडिशनल वे जो होता था वो ऑन साइट
ऑपरेशंस और ऑन साइट सारी चीज़ें होती थी, उसके लिए डिजिटल पावर की इंपॉर्टेंस बड़ी ज़रूरी है। तो आज के हम इस टॉपिक में ज़्यादातर मैं आपको इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ONM के बताऊंगा, फिर उसमें जो हवावे का सोल्यूशन हमारे पास है इसके लिए और उसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो हम उसको ब्रीफ कर रहे होंगे। So starting from my content, so first of all, Huawei Digital Energy Services overview will be there, trend and challenges will be there, and smart PV cloud solution will be there. So starting from Huawei Digital Power Services, what Huawei is providing right now and leading, it will be a capacity of Huawei, you can say. So starting from the coverage of Huawei, हम जिस Huawei पूरे दुनिया में एक शिफ्ट को इन्होंने Huawei ने जो है कवरेज जो है उसमें कवरेज दी है, जिसमें स्टार्ट करते हैं तो हमारा 300 गीगावाट की शिपमेंट जो है वो इस 2013 से 2022 तक हमारी कंप्लीट हुई है, जिसके अंदर हम अगर देखें तो ये बहुत बड़ा एक फिगर था हमारे पास। अब इस फिगर को कंट्रोल करने के लिए और जो हमने इतना शिपमेंट दी है इसके लिए हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, बेसिकली वही इसमें मेंशन की हुई है। अगर आप देखें तो इसमें से 2500 लार्ज ग्राउंड पावर स्टेशन थे, और उसमें से हमारे पास ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम भी आ जाते हैं, बेस स्टेशन भी आ जाते हैं, यूटिलिटी स्केल, और हमारे पास इंडस्ट्रियल आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कमर्शियल साइड पे 250 के हमारे पास जो है कमर्शियल स्केल में आ जाते हैं, और 1.4 मिलियन डोमेस्टिक कमर्शियल डोमेस्टिक और ये जो होम कर्टसी और फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन है वो आ जाते हैं। Can you screen number 8 right now? Can you see the screen? No. Let me share again. Sorry for that. Enjoy your screen. Okay, fine. Sorry for the screen sharing right now. ओके अगर हम इसमें देखें तो एक शिफ्ट आया था हमारा 2015 से ऑनवर्ड, जो मेनली हमारा शिफ्ट आया था उसमें हमारा सेंट्रलाइज इन्वर्टर जो थे वो कन्वर्ट हुए थे स्ट्रिंग इन्वर्टर में, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ONM पार्ट, और जो हमारा स्ट्रिंग लेवल और लॉसेस थे फील्ड साइड पे उसको रिड्यूस करने के लिए। तो उसमें हमने लीड किया 2015 से ऑनवर्ड, इन्वर्टर्स जो थे उनको हमने स्ट्रिंग इन्वर्टर में गए, हाई वोल्टेज लेवल पे गए, और उसके अंदर फिर हम अब जो है स्टोरेज सिस्टम में आ चुके हैं। स्टोरेज सिस्टम में हमारे पास पैरेलल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर अगर हम इस स्पेसिफिक पोर्टल की बात करें तो हमारा एक क्लस्टर इसमें डेवलप हो जाता है, जिसमें हम अपने चार्जिंग रेट को भी देख सकते हैं और स्टेटस को भी देख सकते हैं और मेनली हेल्थ को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो शिफ्ट आया था वो डिजिटल एंड इंटेलिजेंट अपग्रेडेशन में आया था, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स होते हैं। कैन यू सी स्क्रीन? सॉरी फॉर अ मिनट। वो करके ना स्क्रीन शेयर करके स्लाइड शो ऑन करो, फिर देखते हैं फिर आगे तो फिर वो वहीं पे guys, just a minute. Okay, continue from the starting from intelligent, we were at the digital and intelligent upgradation. So in this part, we don't use to have intelligent based system like हम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आईवी कर्व, जो 2 मिनट में आपका पूरा जो प्लांट है डायग्नोस कर देता है। ट्रैकिंग सिस्टम है, एआई बेस्ड AFCI चीजें हैं सेफ्टी के लिए। उसके बाद हमारा ग्रिड टाइड की तरफ अगर हम आते हैं तो मेनली शिफ्ट जो है डिजिटल पावर की रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्रिड टाइड सिस्टम से हुई थी, जिसमें हमारे पास बेस पावर प्लांट भी आया, फिर रेजिडेंशियल भी आया, फिर उनके जो एल्गोरिदम्स थे हमारे पास स्टोरेज के उसका कंट्रोल आया। और लास्टली अगर हम देखें तो इसमें जो सिक्योरिटी अपग्रेड है, जो सेफ्टी अपग्रेड है, उसके अंदर हम देखें तो PID आ गया, 0 वोल्ट शटडाउन आ गया जो ऑप्टिमाइजर बेस्ड है,
और इंटेलिजेंट आर्क प्रोटेक्शन आया। इंटेलिजेंट आर्क प्रोटेक्शन में रिसेंटली हमने डिफरेंट अपने वेंडर्स के साथ और थर्ड पार्टी के साथ, कंसल्टेंट के साथ, इनको हमने फिजिकली इन पाकिस्तान हमने इसको वेरीफाई भी किया विद अदर ब्रांड्स इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस ऑफ थर्ड पार्टी एंड कंसल्टेंट देयर। तो हमें अभी तक कोई और इन्वर्टर जो है वो बेसिकली आर्क प्रोटेक्शन पे नहीं मिला, जो कि हमारा विद इन 3 सेकंड के अंदर जो है ट्रिपिंग दे और आर्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हो। तो इट इज़ आवर अचीवमेंट बीइंग एन हुआवे रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद हमारा एनर्जी स्टोर सिस्टम था, जिसमें हमारे पास ऐसा आ गया जो हमारा अभी रिसेंटली अगर मैं कोट करूं तो 1300 मेगावाट हमने सोडियम रेड सी प्रोजेक्ट्स के लिहाज से वो एग्जीक्यूट किया है। और उसमें इस टाइम क्लस्टर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जो इसमें प्रेजेंटेशन में आगे आपको बता भी रहूँगा। सो अगर हम इस मार्केट के ट्रेंड और चैलेंजेस की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन आवर मार्केट राइट नाउ। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड अनेबल टू कोऑर्डिनेट। तो अगर हम अपने प्लांट मैनेजमेंट की बात करें ओवरऑल, तो हमारे पास हर लोकेशन पे डिफरेंट प्लांट्स हैं विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स। तो उनको सेंट्रलाइज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस टाइम सेंट्रलाइज करना हमें उसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम वन विंडो सोल्यूशन हो हमारे पास, एक जगह बैठ के हम उसको कंट्रोल भी कर सकें और उसके डाटा को भी मॉनिटर कर सकें, और उसके जो जो O&M की चीज़ें हैं उसको भी देख सकें। तो इसमें अगर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो लार्ज मैनेजमेंट ग्रैनुअलिटी में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो छोटे छोटे लेवल का डाटा होता है उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करना, उस डाटा को आगे यूज करना, इसकी बड़ी हमारे इस टाइम जो मार्केट में वो कमी है। और इस अगर अभी भी हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स हैं, लेकिन अगर आप देखें जैसे पहले स्काडा सिस्टम होता था और दूसरे सिस्टम होते थे, उसमें आप मॉनिटर कर रहे होते थे, किसी हद तक कंट्रोल कर रहे होते थे, लेकिन अभी भी हमारे पास जो बेस पावर प्लांट है उनमें इसकी कमी है और हम उसको सेंट्रलाइज नहीं कर पाए और हमें छोटे से छोटा डाटा जो है उसको यूज करना भी नहीं आया। अगर हम उसके O&M की बात करें तो O&M में हम एक एक्सपर्ट का साइड पे होना बड़ा जरूरी था। अगर आप 10 साल से पीछे चले जाएं तो जो एक पावर प्लांट था उसके ऑपरेशंस में एक एक्सपर्ट का 24/7 होना बहुत जरूरी था और उसकी टीम भी वहां होनी जरूरी थी। लेकिन राइट नाउ हमें इससे निकलना है, क्योंकि इसकी ये बहुत ज्यादा इस पे कॉस्ट हमारी लग रही होती है और हमारा मैन आवर्स बड़े लग रहे होते हैं, और फिर भी उसके अंदर कमी रह जाती है। इवन दो कि हमारे पास वहाँ पे मैन ओवर की कमी नहीं होती, लेकिन कॉस्ट भी बेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट बेनिफिट नहीं हमें मिलता। अगर हम लास्टली देखें तो अब हमारे पास AI बेस्ड सिस्टम्स हैं सारे के सारे, तो लेकिन फिर भी हम इस माशरे में हमें अभी भी डिफिकल्टीज हैं इसको कोलैबोरेशन के लिए कि सारे प्लांट्स को, सारे डिवाइसेस को एक जगह सेंट्रलाइज करने में। तो हमारे पास अभी जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेंड जो है उसमें हमें इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इन 4 पॉइंट्स में बेसिकली ये था कि हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अगर हम नेक्स्ट देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी मल्टीपल पार्टी पार्टिसिपेशन विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट आती है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, अपनी एसेट को कैसे मेंटेन करना है। और अगर हम इस डाटे का बेनिफिट देखें तो हम इस डाटे से अपने पूरे एक कंट्री की, एक प्रोविंस की, एक सिटी की और एक प्लांट तक, छोटे से छोटे लेवल से लेके टॉप लेवल तक हम सारा डाटा जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे हमें फिर सोशल भी देखना होता है, सोशलाइजेशन, सोशल और इन्वायरमेंटल बेस्ड चीजें भी देखनी होती हैं। तो कार्बन रिडक्शन, उसकी अचीवमेंट, जो हमारा WHO के टारगेट्स चल रहे हैं उसमें हमारे पास GHG की रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन, उस पे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें फोकस करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट लेवल पे, और हमारे पोर्टल पे सारा वो अवेलेबल भी होता है। और इसमें अगर हम देखें तो स्टेबल ऑपरेशन जो है पावर ग्रिड का वो भी बड़ा जरूरी है। अगर हम O&M पर्सनल्स की बात करें तो O&M में हमारे जो पास जो प्लांट एक KPI होते हैं, एक प्लांट है उसके हमारे पास एक एफिशिएंसी का डाटा है और हमने एक एफिशिएंसी अचीव करनी है, तो उसके लिए जो KPI हमारे सेट होते हैं हम उसको भी एक सेंट्रलाइज पॉइंट से अचीव कर सकते हैं। फिर अलार्म हैंडलिंग आ जाती है। फिर O&M में हमें मैन पावर की बजाय, हमें साइट पर एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करने की बजाय हमें एक रिमोट पोर्टल से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक अब जो हमारे पास पावर प्लांट है ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, लगा दिए, इसका हमने O&M को चला लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन थर्ड ये है कि 25 ईयर्स की हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल आता है। तो एसेट मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। एसेट मैनेजमेंट में हमारे पास लाइफ साइकिल जो है उसकी जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, उसकी हेल्थ को देखना बड़ा ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन को देखना बड़ा ज़रूरी है, और एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट को देखना बड़ा ज़रूरी है, और मेनली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये हमारे पास चैलेंजेस हैं, ये हमारे पास ट्रेंड है। अब हमें अगर हम देखें कि वो हमारे पास सोल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का, तो सोल्यूशन इसका ऑलरेडी अवेलेबल है, हुआवे की तरफ से अवेलेबल है और डाइवर्सिफाइड लेवल पे अवेलेबल है। अगर आप थर्मल पावर प्लांट से बात करें, वहां से लेके हमारे पास सोलर इंडस्ट्री, विंड, और हम सबको एक जगह कॉमन भी कर सकते हैं। तो उसमें अगर मैं ब्रीफ करूं तो टिपिकल एक प्लांट लेवल जो हमारी लेआउट है उसको अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे जैसे इसमें हमें लो वोल्टेज ग्रिड टाइड सिनेरियोज में दिखाया है पीवी मॉड्यूल्स, और राइट साइड पे हमारा फ्यूल सेल पोर्टल है, और इनको आपस में सिंक कैसे करना है, उसके अंदर जो ये डिवाइसेज होती हैं, इन्वर्टर होता है और हमारे पास जो दूसरी डिवाइसेज है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो ब्रीफ भी कर दूंगा। तो मेनली ये हमारा एक लो वोल्टेज का ग्राफ है, और नीचे अगर हम देखते हैं 10 kVA ग्रिड सिनेरियोज में जो हमारा ग्राफ है उसमें क्या आ रहा होता है, उसमें लेआउट में हमारे पास कैसे हैं, हम एक डिवाइस से तीन, जैसे यहाँ पे 3 इन्वर्टर शो करवाए हुए हैं, तो आप इसको मल्टीपल भी कर लें तो डाटा लॉगर के थ्रू हम मल्टीपल इन्वर्टर्स को भी उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारा एक जेनेरिक सी मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत थी कि हमारे पास जो लेआउट है वो कैसे है। उसके बाद अगर हुआवे डिवाइसेस की बात करें, जो हमारे मैनेजमेंट पोर्ट, जो हमारा फ्यूजन सोलर पोर्टल है, उसको हमारी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए, जो ऑन साइट हमारा इक्विपमेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक रोल अदा कर रही होती है। उनमें से ये हमारे पास 3 इक्विपमेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास WLAN FE आ जाता है, डोंगल आ जाती है 4G, और स्मार्ट लॉगर आ जाता है। तो इसमें एक अपडेट मेरे पास ये है कि जो 4G डोंगल है ये तो पहले आपके CNI प्रोडक्ट के साथ कंपेटिबल थी, लेकिन जो WLAN FE का न्यू मॉडल है वो आपके 115 KTL के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, और उसको भी सपोर्ट करती है टू कनेक्ट आवर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इसकी डिवाइसेस की बात करें तो दोनों डोंगल्स जो हैं WLAN FE और 4G, ये 10 डिवाइसेस मैक्सिमम सपोर्ट कर सकती हैं। और अगर हम लार्ज पावर स्केल की बात करें तो स्मार्ट लॉगर जो हमारे पास है ये 18 इन्वर्टर्स तक जो है हमें सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारा जो एक फ्यूजन सोलर पोर्टल का जेनेरिक व्यू आ जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारे दो स्पीकर और हैं जो आपको हाउ टू यूज ऑफ फ्यूजन सोलर पोर्टल उसके बारे में बता रहे होंगे। मैं जेनेरिक आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखा देता हूँ। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है बेसिकली। एक हमारा रियल टाइम ONM है, ऑपरेशन विजिबिलिटी, और KPI मैनेजमेंट है। इसके अंदर जो हमारा ONM आ जाता है, ONM में इसमें बहुत प्यारा फीचर है हमारे पास कि हमारे पास जो मैप है उस मैप में हम देख सकते हैं कि हमारे प्लांट लोकेटेड कहाँ पे हैं, और फिर हम अपने जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो ऑन साइट हमें मैन पावर दे रहे होते हैं, जो हमें कहीं अगर ज़रूरत होती है तो टाइमली नोटिफाई होता है, और वहाँ से नज़दीक तरीन जो हमारा एक टेक्नीशियन होता है उसको नोटिफिकेशन चला जाता है। अगर साइट पे जाने की ज़रूरत है तो वो साइट पे फिल फोर जाके उस फॉल्ट को क्लियर भी कर सकता है। ये एक जो भी कंपनी है वो खुद से डेवलप कर सकती है, हमारे पोर्टल के अंदर अपना नेटवर्क बना सकती है। ये इसका मेन मकसद ये था, तो प्रीसाइज अलार्म लोकेटिंग इन रियल टाइम एंड रिड्यूसिंग द टाइम इंटरप्शन टाइम, कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ सके और हमारा जो फॉल्ट है वो जल्द से जल्द क्लियर भी हो सके। उसके बाद हमारा ऑपरेशन विजिबिलिटी आ जाता है, जिसके अंदर हमारा डैशबोर्ड है। इसके अंदर हम एक विंडो में सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, ताकि अब अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई आपको प्लांट उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कोई डिवाइस में मसला है, तो आप एक पोर्टल से उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा KPI मैनेजमेंट आ जाता है। KPI में हम देख लेते हैं कि हमारी जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो रेवेन्यू है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं एक पावर प्लांट से। आखिर एक हमारा पावर प्लांट है, इसकी बैक एंड पे जो मेन वजह है रिन्यूएबल एनर्जी में, उसमें यही है कि हम इसको रेवेन्यू को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमारा कितना एफिशिएंटली कॉस्ट एफिशिएंट प्लांट ये चल रहा है। उसके बाद अगर हम इसके मजीद 3 मैं फीचर्स को बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास प्लांट लेवल मॉनिटरिंग में अलार्म विजुअलाइजेशन, KPI विजुअलाइजेशन, एनर्जी स्टैटिकल एनालिसिस एंड रेवेन्यू एनालिसिस जो है वो हमारे पास होता है। उसके अंदर हम डिवाइस लेवल भी देख सकते हैं। और अगर उसके बाद हम डिवाइस लेवल की बात करें तो डिवाइस लेवल में हमारे पास एक क्लस्टर बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल आता है, जिसके अंदर हम डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी डिवाइस की एफिशिएंसी डाउन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अगर कोई फॉल्ट है तो डिवाइस लेवल पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेल लेवल मॉनिटरिंग आ जाता है इन फील्ड। अगर हमारे पास ऑप्टिमाइजर्स हैं एट साइट तो हम उसके प्लांट पैनल लेवल तक जो है मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पैनल में एफिशिएंसी डाउन है, किस पैनल में एफिशिएंसी ज़्यादा है, किस स्ट्रिंग की एफिशिएंसी किस लेवल पे है। अगर हम PV साइड को ज़रा मज़ीद इसको डाइवर्सिफाइड देखें और इसको हम ब्रेक डाउन में देखें तो हमारे पास यहाँ एक बहुत प्यारा पोर्टल है, जिसके अंदर हम इसके ऑप्टिमाइज़र के थ्रू हम अपने PV प्लांट को
मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा एक जो पैनल है उसकी एफिशिएंसी कितनी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि अब हमें 10 साल से ऊपर हो गए हैं पावर प्लांट्स में और सोलर पैनल्स को लगाते हुए हमारे घरों में, हमारे प्लांट्स में, हमारे यूटिलिटी में, हमारे कमर्शियल साइड में और इंडस्ट्री साइड में। तो अब डी रेटिंग होना शुरू हो गई है हर प्लांट में, क्योंकि पहले जो हमारे सोलर पैनल थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। तो अगर हमें एक प्लेटफॉर्म पे वन विंडो में एक पैनल तक मॉनिटरिंग मिल जाए कि किस पैनल पे हमारा जो है वो शेड ब्राउन हो गया है, किसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है, तो हम उस पैनल को रिमूव करके उसी जगह न्यू पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं और हम देख सकते हैं। ट्रेडिशनली ये करना बहुत मुश्किल था। अगर हम प्लांट लेवल मॉनिटरिंग की बात करें, अगर हम एक एक्सपर्ट किसी प्लांट पे अगर 100 पैनल्स हैं उनमें से मॉनिटर करके उनमें से देख लेता है, इंस्पेक्शन करके कोई पैनल पकड़ भी लेता है, तो वो मैक्सिमम 5% एक एफिशिएंट लेवल होगा। लेकिन इस पोर्टल में ये हो जाता है कि कलर आपको डिफरेंट मिल जाता है और आप उसको मॉनिटर करके पैनल को फिल 4 जो है लोकेट करके चेंज कर सकते हो। जो ज़्यादा डीरेट हो गया या पूरी स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो। ये एक न्यू फीचर है जो हमारे पोर्टल में आया है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, जैसे मैंने पहले एक प्रोजेक्ट को कोस्ट किया कि 1300 मेगावाट सऊदी अरब में जो एक हवावे पोर्टल लगा है उसमें हवावे प्लांट लगा है, उसमें ये क्लस्टर लेवल मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो अगर हम ये देखें तो इसके जो मेनली फायदे हैं कि एक पैकेज है जहां आप सारा कुछ मॉनिटर कर सकते हो, सेल लेवल तक मॉनिटरिंग कर सकते हो। अगर कोई एक स्टोरेज बैटरी स्टोरेज सिस्टम में एक यूनिट भी हमारा डैमेज है तो उसके भी मॉनिटरिंग हम कर रहे होते हैं। और उसके बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन एक आपको निकल के आती है, रिपोर्ट निकल के आती है, वो आपके लिए एक बड़ी हेल्पफुल साबित होती है और आप अपने मैनेजमेंट को, आप अपने कस्टमर को इसको शो करवा सकते हो बड़ा एफिशिएंट लेवल पे। उसके बाद अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो हमारे पास 4 किस्म की रिपोर्ट आती हैं, 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होती हैं, जो हम एक पीवी प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं, इन्वर्टर रिपोर्ट कर सकते हैं, पीसीएस रिपोर्ट कर सकते हैं और एनर्जी स्टोरेज रिपोर्ट हमारे पास जनरेट होती है सेपरेटली। पीसीएस बेसिकली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ सिंक ही होता है और ये आपको एनर्जी स्टोरेज जो है उसको ऑपरेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा 4 किस्म की डायमेंशन आती हैं रिपोर्ट की, जिसमें हमारा डेली है, मंथली है, एनुअल रिपोर्ट है और लाइफ साइकिल रिपोर्ट है। लास्टली मैं आपको ये सारा कुछ बताने का और ये सारा पोर्टल का फ़ायदा जो है वो हमारी इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, तो वो हमारा जो ट्रेडिशनल वे है इसको मैं अगर देखूं तो हमने जो डाइवर्सिफाइड और हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जैसे इसको नोटिस किया तो 19% कॉस्ट एफिशिएंट हमारा पोर्टल बन जाता है। अगर हुआवे फ्यूजन सोलर पोर्टल पे हैं और एक बंदा जो है वो ट्रेडिशनल वे से ओएनएम पे है, तो ये हमारा 19% ज़्यादा एफिशिएंट हमारा जो है बन जाता है प्लांट पूरे का पूरा। That's all from my side. I will be handing over to Ms. Shivza again to invite the other portals. Thank you, everybody. If you have any question, you can ask me in the chat room. I will be answering it. Thank you so much, Aves, for giving us such detailed insights about how this Fusion portal is important and how it is improving in technology and advancement day by day. I think it can easily be concluded that sheer transparency and digitized manner of everything with such precision and accuracy, it's a promise in the Huawei Fusion Solar Portal. So before again I move forward to our next panelist, I would request everyone कि अगर किसी के किसी भी किस्म का question है regarding the previous information or anything else regarding this topic, so do put down your queries in the question answer session जो कि आपको नीचे नजर आ रहे होंगे. There is a bar for the question answer, so we would be answering your questions respectively. Anyhow, I'll be moving to the next presenter, Talha Kashif, to take on the stage and start with your part. Assalamualaikum. My name is Engineer Talha Kashif. I will be representing all the installer related queries and how Fusion Solar has facilitated the installers with the management of the plant and overall working of the Fusion Solar power plant. Amongst the agenda points I have,
the explanation of a dashboard, how to add a plant, report management and its features, and how can it be made useful for the installers and to their respective clients, device management and parameter settings, upgradation and exporting logs. हमारे पास जब फ्यूजन सोलर पोर्टल पे हम लॉगिन करते हैं तो एक डैशबोर्ड का पेज आता है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा डैशबोर्ड का पेज है जिसमें हमने अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने प्लांट्स को लिस्ट किया हुआ है। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो राइट साइड पे आपके पास सिलेक्ट कॉलम में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ये बेसिकली वो फील्ड हैं जो कि आप प्री सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने डिस्प्ले करानी है, उनको अवेलेबल करा सकते हैं। और ये ऑब्वियसली एक ऐसी स्क्रीन है जो कि आपके पास ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसे आप बेटर जज कर सकते हैं कौन से साइट पे आपने किस तरह O&M प्रोवाइड करनी है और क्या ओवरऑल उनकी रनिंग चल रही है और किसको अटेंशन देने की जरूरत है। इन हाउ टू ऐड अ प्लांट, आपने एक प्लांट कमीशन किया, साइट कमीशन किया, आपने उसको पोर्टल पे ऐड करना है ताकि रिमोट मॉनिटरिंग आप क्लाइंट को भी प्रोवाइड कर सकें और अपनी टीम में भी उसको प्रोवाइड कर सकें ताकि सक्सेसफुली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को हैंडल किया जा सके। प्लांट की रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस और जो भी सबसीक्वेंट वर्किंग्स हैं वो उसको आप स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकें। तो वाइल एडिंग अ प्लांट ये एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होता है ऐड अ प्लांट का, और सेट इसमें बेसिक इन्फो आपने इनपुट करनी होती है। इसमें पहला आपका कंपनी का नेम है, कंपनी के नेम के अगेंस्ट आपके आईडीज रजिस्टर हुए होते हैं। उनको देखते वक्त आपने अपने सारे प्लांट की डिटेल्स, प्लांट टाइप के डोमेस्टिक है, रेजिडेंशियल है या C&I है, वो ऐड करेंगे। ग्रिड कनेक्शन की डेट आप एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन, इसमें जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, बेसिकली जब आप किसी कंज्यूमर को ये पोर्टल का फीडबैक देते हैं तो आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन उसके पास डिस्प्ले हो रही होती है। और इन केस कोई अलार्म या वो आता है तो एक पोर्टल पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि इन केस ऑफ एनी अलार्म और क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन टू गेट इट रिजॉल्व्ड ASAP। फिर एड अ प्लांट के नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में आपके पास एक ट्रेल चल रही होती है, उसको अगर हम ट्रैक करें तो पहले बेसिक इन्फो के बाद एड अ डिवाइस का ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है आप उसका सीरियल नंबर एंटर करेंगे। डिवाइस टाइप, जब आप सीरियल नंबर एंटर करेंगे तो डिवाइस टाइप ऑटोमेटिकली पिक होगी। और इन केस आपका जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, बी एट WLAN FE डोंगल, बी एट स्मार्ट लॉगर, बी एट 4G डोंगल, अगर वो सारे मैनेजमेंट सिस्टम के साथ वेल कनेक्टेड हैं तो ये यहाँ पे खुद कन्फिगर होके जो उनके रिलेटेड डिवाइस हैं वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे और आपके पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट स्ट्रिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक फॉर अ site with 400 kilowatts installed and we have multiple inverters there, be it 100 KTL, be it 60 KTL, तो आपके पास हर इन्वर्टर के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक DC कैपेसिटी होगी जो कि इंस्टॉल हुई होगी। आप हर इन्वर्टर के अगेंस्ट DC कैपेसिटी अगर यहाँ पे मेंशन कर दें तो आपके पास वो कैपेसिटी मेंशन हुई आएगी। और बाद में as this session goes on, Ansar will tell you how to adjust the string configuration in using Huawei portal itself. एक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का भी पेज है, वो एक कमर्शियल इसका एस्पेक्ट ये है कि आप अपने यूनिट्स के अगेंस्ट जो भी यूनिट रेट डिसाइड करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट आप अपने प्लांट के किलोवाट आवर को मोनेटाइज कर सकते हैं सिर्फ पोर्टल के लिए। अब मूविंग ऑन, हमारे पास एक रिपोर्ट मैनेजमेंट का पेज होता है। With the vast experience that DSG Energy has in the C&I sector, हमने एक चीज जो एक पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया है अपने क्लाइंट्स का, वो ये था कि क्लाइंट्स को रेगुलरली डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन का डाटा, अपनी यूजेज का डाटा, अपनी सोलर की इन्वेस्टमेंट का डाटा लॉग करना है। अब वो उसको लॉग कैसे कर सकते हैं? हवावे अपने रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अगेंस्ट हमें ये इक्विप करता है कि हम अपनी रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकें। एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट टू द रेलिवेंट कंज्यूमर जनरेट होगी और वो रिपोर्ट जब कंज्यूमर को डिलीवर होगी तो दे जस्ट हैव टू कीप द ट्रैक के कितनी एनर्जी इस प्लांट ने प्रोड्यूस की है इन द येस्टरडे, और उसको फिर आप सब्सक्रिप्शन को मंथ लेवल पे, ईयरली लेवल पे भी लेके जा सकते हैं ताकि आप अपना एक सक्सेसफुल लॉग मेंटेन कर सकें। इसमें एक बाइफिकेशन ये भी है कि आप प्लांट लेवल पे, इन्वर्टर लेवल पे, बैटरी रिपोर्ट जिनके पास ESS सोल्यूशन इंस्टॉल्ड है वो इस रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें प्लांट आप मल्टीपल प्लांट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन
सिलेक्ट कर सकते हैं कि बाय टाइम होगी या बाय प्लांट होगी। टाइम की वो कर सकते हैं कि आर्ली डाटा चाहिए, डेली डाटा चाहिए, और एक स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है। तो यही सारी कॉन्फ़िगरेशन प्लांट लेवल पे, इन्वर्टर लेवल पे आपके पास मौजूद है। तो आप एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट करके अपने क्लाइंट के साथ जो ट्रांसपेरेंसी हम अपनी सेल्स पिच में कमिट करते हैं उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द डिवाइस मैनेजमेंट पेज। अब रिमोट जब हम इतनी ऑपरेशंस कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमारे प्लांट का डेटा हम रिमोटली व्यू और ओवरव्यू कर सकें, तो उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इन ऑप्शंस को देखते वक्त ये हमारा प्लांट है जिसके ऊपर हम डिवाइस मैनेजमेंट में अगर जाएं तो हमारे जितने भी डिवाइसेस उस प्लांट के साथ बाइंड हैं वो अब अपीयर हो जाते हैं। मैं किसी एक डिवाइस को सिलेक्ट करता हूँ, उसके सेट पैरामीटर्स में जाऊंगा तो मैं पैरामीटर्स की एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। और किसी एक डिवाइस को सिलेक्ट करते वक्त मैं उसका परफॉर्मेंस डाटा और बेसिक इन्फो भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर हम 100 kDL की बात करें और उसमें पैरामीटर एडजस्टमेंट्स में जाएं तो हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली जो डिवाइस का आपने नाम एलोकेट किया हुआ है, मॉडल, प्रोटोकॉल वर्जन, और ये उसके ऊपर फंक्शन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रिड पैरामीटर्स हैं। हम जब भी अपनी साइट को कमीशन कर रहे होते हैं, जो भी इंस्टॉलर इससे रिलेट करेंगे, तो एक ग्रिड कोड डिफाइन करते हैं। उस ग्रिड कोड के अगेंस्ट सर्टेन वोल्टेज लेवल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी लेवल्स होते हैं, सर्टेन डी रेटिंग की कंडीशंस होती हैं, जिनको हमने पहले एक दफ़ा रिव्यू करके उसको आगे करना होता है। क्योंकि वंस प्लांट आप ये सारी चीज़ों को रिव्यू कर लेंगे और अपना एसी ब्रेकर या इन्वर्टर को एसी साइड से कमीशन कर देंगे, तो वो एनर्जी उसके ही ग्रिड कोड और उसके ही जो रेगुलेशन है या पैरामीटर्स है उनके बिटवीन वो फंक्शन करके जनरेट करने लग जाएगा। फिर हमारे पास प्रोटेक्शन पैरामीटर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अब जैसे प्रोटेक्शन पैरामीटर्स में इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक पैरामीटर है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, फ्रिक्वेंसी और बाकी सारी वर्किंग इसमें मेंशन होती है। फिर फीचर पैरामीटर हमारे पास मेंशन होते हैं। फीचर पैरामीटर्स में आप हाई वोल्टेज राइट थ्रू, लो वोल्टेज राइट थ्रू, ओवर फ्रिक्वेंसी डी रेटिंग, मल्टीपल ऑप्शन हैं जो होती हैं। और पावर एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पावर एडजस्टमेंट से हम प्लांट की प्रोडक्शन पावर को कटेल कर सकते हैं, और सबसीक्वेंटली वो फिर आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वंस आपकी टीम डिप्यूट भी कर गई है, साइट से डीमोबिलाइज भी कर गई है, आप रिमोटली रहते हुए अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज और जो रेंजेस हवावे एक सर्टेन ग्रिड कोड के अगेंस्ट डिफाइन करता है उसको देखते वक्त और सपोर्ट स्टाफ से रेगुलर कोऑर्डिनेशन करते वक्त अपनी पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फ्रिक्वेंसी में आज डिस्ट्रप्शन कर रही है वो डिस्ट्रप्शन कंटिन्यू ना हो, बल्कि आप उसको स्टॉप करके आगे एक बेटर वर्किंग की तरफ लेके जा सके, जिसमें प्लांट को की प्रोडक्शन को मिनिमम डिस्ट्रप्शन हो, मिनिमल डिस्टर्बेंस हो, और चीज़ें ऐसी ही प्रोसीड करें। फिर एक अपग्रेडेशन का हमारे पास विंडो होती है डिवाइस अपग्रेड करने की। डिवाइस अपग्रेड हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं ये एक सॉफ्टवेयर पैच के साथ चल रहे होते हैं, और इस सॉफ्टवेयर पैच की रेगुलर अपडेट्स आ रही होती है फॉर टू स्मूदन द वर्किंग, और सारी चीज़ें ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस करती रहें, और जो कुछ बग्स और एरर्स जो हमें पिछले अपग्रेड में फेस करते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करके हम एक ऑप्टिमम सॉफ्टवेयर मॉडल पे जा सकें। तो अगर अपडेट मैनेजमेंट का टास्क है तो वो भी फ्यून सोलर के थ्रू आप कर सकते हैं। आपके पास टॉप राइट पे क्रिएट अपडेट टास्क की ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक तो डिवाइस टाइप डिफाइन करवाएगा, क्योंकि डिवाइस की टाइप रेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपका स्मार्ट लॉगर एक डिवाइस टाइप है, 4G एक डिवाइस टाइप, 4G डोंगल एक डिवाइस टाइप है, इन्वर्टर्स एक और डिवाइस टाइप है। तो इनकी रिलेटेड अपडेट्स आपको शो हो और डिवाइस से सेंटर्ड हो तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टिंग हो चुकी भी है। आप जो भी आपका सपोर्ट स्टाफ या सर्विस मैनेजर जो आपको रिकमेंड करेंगे, आप उसके अपग्रेड के वर्जन को सिलेक्ट करके अपनी डिवाइस को उसी तरह अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं रिलेट करूं तो जितने भी हमारे इंस्टॉलर्स इस वेबिनार के सेशन में एंगेज्ड हैं
उसमें हमारी जो वर्किंग इंस्टॉलर और जो स्पेसिफिकली आफ्टर सेल सर्विसेज या क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए डे इन डे आउट वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ एजेंट्स के साथ भी रहती है। हवावे की सपोर्ट स्टाफ को रेगुलरली ईमेल्स एक्सचेंज होती हैं। तो वन पर्टिकुलर क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क इज आप अपने लॉग शेयर करें, डिवाइस के लॉग शेयर करें। हमारे डिवाइसेस इतने स्मार्ट होते हैं, जो हवावे के हम डिवाइसेस यूज करें वो इतने स्मार्ट ऑलरेडी हैं कि वो कोई भी फॉल्ट, कोई भी रनिंग, कोई अपनी रनिंग का सारा डाटा एक पोटेंशियल जगह पे लॉग कर रहे होते हैं, और उस लॉग को कभी भी हम एक्सपोर्ट करके अगर सपोर्ट स्टाफ एजेंट के साथ शेयर करेंगे तो वो हमें बता सकते हैं कि आपके प्लांट में ये इश्यूज आ रहे हैं और इस तरह आप इस प्लांट के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने पहले इसकी प्रैक्टिस ये भी हुआ करती थी कि हम अपने सपोर्ट इंजीनियर को साइट पे भेजा करते थे, उनसे कहते थे कि आप अपनी सारी टेस्टिंग करके डिवाइस को ऑफलाइन मोड में कनेक्ट करें और उससे लॉग्स डाउनलोड कर लें, ताकि हम लॉग्स को आगे हवावे सपोर्ट एजेंट से कनेक्ट करके उनके साथ शेयर कर सकें। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा डिले आता था, टीम ने कब विजिट किया, टीम ने कब लॉग शेयर किए, फिर आगे सपोर्ट एजेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन बिल्ड हुई, उनकी क्या रिकमेंडेशन आई, फिर दोबारा टीम ने विजिट किया टू रेक्टिफाई दिस। इसमें एक चीज ये प्रोवाइड की गई है कि लॉग मैनेजमेंट के थ्रू रिमोटली आपने ऑफिस में बैठ के किसी भी एक डिवाइस के लॉग्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास प्लांट नेम के ऑप्शन है, अपना प्लांट डिफाइन करेंगे, डिवाइस टाइप की ऑप्शन अपनी डिवाइसेस डिफाइन करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो उस डिवाइस से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपके पास अपीयर हो जाएंगे। फिर इट इज अप टू यू कि आप कौन सी डिवाइस का, कौन से इन्वर्टर का, कौन सी डोंगल का लॉग डाउनलोड करना चाहते हैं, और फिर 3 इजी स्टेप्स में स्टार्ट, एक्सपोर्ट और सेव लॉग करके आप अपने लॉग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह फिर आप जब वंस कोई अलार्म आपने देखा है और उसको ऑब्जर्व किया है और आप उस पे सपोर्ट स्टाफ एजेंट्स की टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं और एक गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी और उससे आप अपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लॉग्स डाउनलोड करें और उसके बाद एक कंसाइज सी ईमेल में अपना सारी रिजर्वेशंस और वो शेयर करें, लॉग्स को अटैच करें। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा सपोर्ट स्टाफ एजेंट से वो काफ़ी स्विफ्ट होगा और वो आपको जल्दी मेंटेनेंस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने के लिए मदद करेगा, जिससे क्लाइंट की भी प्रोडक्शन कम मुतासर होगी और आप भी स्मूथ ऑपरेशंस करते हुए ऑपरेशन मेंटेनेंस की भी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और अपनी साइट पे जो टीम और वो डिप्लॉय करें उनके भी कम मैन आवर्स साइट पे स्पेंड होंगे। This was all. I would request Ansar Iqbal to join. Okay, Ms. Hifza. Thank you, Talha, for giving us such detailed analysis के portal actually काम कैसे करता है and how simpler it is once you start managing it. So before we move towards the part of Ansar Iqbal, we had a question right here, and I would like Awais Asmat to answer that question. I think the question was from Rashid Hamid. How about the reports indicating the grid outage and alarm resolution? Can we have the inverters and inverters string comparison in portal? Can you answer that, please? Yes, in graphical view, I already answered in chat. I believe Mr. Read that one. You can comparison string to string and inverter to inverter comparison with graphical view of our data analysis, and you can see which string is producing more and which is less, and if voltage is equal, then where is your loss? Is it AC loss or it is AC side loss? You can monitor that one, and after that, plant to plant comparison is there to brief the to generate the report. The rest of the questions I believe I have answered in the chat room. If anybody else, everybody can ask in the chat. But I think thoda sa verbally explain ho jayega, so everyone would know the answer to that question. Okay, what's next question? Okay, I think we can take it in the last. I think I'll just invite Mr. Ansar to take over and represent you detail. Thank you, Ms. Hifza. My name is Ansar Iqbal and I'm working as a manager technical support in Baham Associate. After my presentation, you will learn about the string configuration,
smart IV curve diagnosis, and the company management, user management, how you can add your users, how you can add the owners of your PV systems, and how you can give them access. And later on, there will be a description on the data modification, how we can recover data from the inverters if there would be any loss. And at last, I will explain a new feature that we have available with the Fusion Solar 8.0, that is plant migration. Hopefully everyone can view the screen, and it is and my voice would be clear to everyone. Starting from the IV curve diagnosis, what IV curve is, have the benefits and sorry. Basically, any plant's solar system or solar plant's efficiency is very much is depending upon the panel's efficiency. And how we can improve the panel efficiency is the better O&M is to have better maintenance of the panels, and is to have better knowledge of the faults, how it can be affected with the panel's performance. The IV curve and the panel's performance is very much relating to its IV curve and the energy curve of the plant. Basically, IV curve diagnosis जो है ये use किया जाता है to check the performance, panel's health and panel's efficiency. तो इसको IV curve diagnosis करने के basically दो तरीके हैं. एक तो ये है कि आप traditional way से on site जाके उसको perform करें, और उसमें you would have different challenges के there it will take very much time, और फिर उसमें there would be any chance of human errors. और definitely अगर आपका megawatt level का plant and you have thousands of panels and you have hundreds of strings, then it will take much time to diagnose through the traditional ways. तो इसको जो है वो better करने के लिए that's the second one is how we can use the online method, कि हम online IV curve diagnosis किस तरह से कर सकते हैं. And this is the age of artificial intelligence, and Huawei integrates AI technology on its portal to diagnose PV faults in very minimum time, and it can locate 14 different types of faults, and you can perform this IV curve diagnosis of megawatt level plants just in 10 minutes. So how we can perform IV curve diagnosis on Fusion Solar Portal? The first thing is there are some prerequisites that you need to perform before starting your diagnosis. And the first step is the string configuration. So you have to configure the strings of your plant very properly. अगर आप इसको सही तरह से configure नहीं करते तो then you will have not proper results. तो उसमें जो एक methodology है उसमें the first thing is you have to go to the plants, and you will have the option of string configuration. Select that and then select the relevant plant, and then the device that should be inverter. You will have two options, inverter or optimizer, and you should select the inverter and then press next. Next, in the second step of string configuration, you will have a module library. You can select your module that you have installed on the site from the library, and if it is not available, then you can add the module by adding the parameters that you will have in the data sheet of the module. And by the addition of module, the last step is to configure the string, and here we have two things to mention. The first one is the commissioning date of the plant, and second one is the module capacity or module quantity. After mentioning this, you will have the capacity of each string
and by analyzing this and by verifying this capacity, you can confirm that your your string configuration is proper or not. Okay, after the string configuration, here I will mention some prerequisites that are necessary to confirm or to verify before starting the diagnosis. The first one is that the sunlight at the site should be greater than 400 watt per meter squares. You need to confirm that the panels are cleaned and your string configuration is करेक्ट. और इसमें एक और चीज है कि जो हमारे स्मॉल कमर्शियल इन्वर्टर्स हैं 8 to 20 KTL सीरीज, उनके लाइसेंस फ्री हैं, और इससे ऊपर जितनी भी कैपेसिटी हैं मोर देन 20 KTL यू नीड टू परचेज द IV curve licenses from Huawei. To start whenever you have the license, then you have to upload the license on the portal. For that, the first thing is to select the plant and then go to the license management, and then select the relevant inverter or the device. Then you will have to upload the license, and then after getting it uploaded, go to the first third step, that is value added services. And on the value added services, there will be an option of smart IV curve diagnosis. And if whenever you start your task, if your string configuration is not proper, and then you will have a message on the screen that your string, you need to verify your string. Okay, the second step is to select the IV curve diagnosis, and the third one is to add your diagnosis task. For this step, the first thing is to select your plant and then the relevant device, and then press the next. And whenever you start the addition of task, and the second step is again you have to verify your string details, and after this verification you will configure the task to start and it will start the diagnosis of the relevant inverters or the relevant plant. Okay, the next thing is the company management, how we can manage our users, how we can change some currency parameters to show the revenue of your plant on the portal. For company management, you go to the system, and then you will have an option of company management. And in company management, you will have, if you have an administrative account, you will have 5 different options. The first one is the user management and the company information, then mailbox and default electricity prices, and then the northbound management. In the user management, you can add any user. You can add the owner of the plant, and with the user management we have 3 different associations and the 3 different roles that you can assign your clients and your partners or your colleagues. If you are creating a user for your colleagues, then you can associate him a role of installer, so that he can also register register any further plants on his portal. और उस portal के ऊपर जितने भी plants को add करेगा वो definitely आपके main जो administrative account है उसके ऊपर show हो रहे होंगे. और अगर आप owner को कोई access देना चाह रहे हैं तो then आप उसको जो है वो role जो associate करेंगे, that will be an owner role. और owner role और installer role में basically ये difference है कि installer can control the plant, installer can configure all the settings to online portal, लेकिन जो आपका owner hai, he will only have the rights to monitor the plants and alarms. So be careful whenever you give the access of your plants to your owners. तो उनको आप हमेशा owner role ही associate करें, क्योंकि if he would start managing the plant, then it will create problems for your O&M team.
Okay, the next one is the company information. Company information mein, there are two things that mainly I would explain. The first thing is you have to note down the company code. Company code basically आपको जरूरत पड़ती है जब आप plant migration में जाते हैं और अगर आप migrate करना चाह रहे हैं, sometimes ऐसा एक issue आता है हमें. Recently भी एक issue आया था कि एक company है that have different offices and have created different administrative accounts और when the people have different administrative accounts and they are registering their plants on that portals, तो फिर उनका जो सारे plants हैं वो एक plant के एक ID के ऊपर नहीं आ रहे होते. तो इसलिए जो आपकी O&M टीम है, they have to log in for the different accounts again and again to review and to monitor the your plants. तो ऐसी सूरत में अभी ये पहले ऑप्शन नहीं थी. अभी जो लेटेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि अगर आप उन सब प्लांट्स को एक ही अपने ID पे ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के ऊपर अगर आप उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, then you have an option of प्लान माइग्रेशन. तो प्लान माइग्रेशन में जाके उसके लिए आपको कंपनी कोड की जरूरत पड़ती है. तो यू हैव टू जस्ट नोट डाउन द कंपनी कोड. एंड द सेकंड वन इज समटाइम्स वी receive the complaints of from different clients के उनका जो रेवेन्यू का ग्राफ है, अगर आप ओवरव्यू पेज पे जाएं हमारे पोर्टल के ऊपर तो उसके ऊपर रेवेन्यू ग्राफ शो नहीं हो रहा था. तो या फिर शो हो रहा होता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो प्रॉपर नहीं होती है और वो या तो डॉलर्स में दे रहा होता है या फिर किसी और करेंसी में दे रहा होता है. तो ये मेनली यहाँ पे आप कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके दैट इज ऑलरेडी हाईलाइटेड बाय रेड बॉक्स के यहाँ पे आप करेंसी जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसको चेंज करने के बाद देन यू फॉर द रेवेन्यू addition you have to set the default electricity prices. So default electricity prices may you have two options. The first one is the feed-in tariff and the second one is purchase tariff. So we mostly recommend the people to just set the feed-in tariff because you just have to show your customers that just what is solar is taking part and what is the solar generation in your revenue. तो यहाँ पे आप जस्ट फीड इन टैरिफ अगर आप परचेज टैरिफ भी सेट करेंगे तो जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा वो फीड इन टैरिफ माइनस परचेज टैरिफ होगा क्योंकि आप कुछ वापडा से ले रहे हैं और जो आप वापडा को दे रहे हैं तो उसमें से माइनस करके शो होगा और उससे आपका जो रेवेन्यू है वो कम शो हो रहा होगा और अगर क्लाइंट जो है वो उस पर आपको इशू कर सकता है. तो इस वजह से आप फीड इन टैरिफ और इसमें फर्दर अगर आप इफ यू वांट टू ऐड द टैरिफ जैसे कि हमारे पास ऑफ पीक और पीक टैरिफ्स होते हैं तो अगर आप ऑफ पीक को अलग से डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट चेंज द स्टार्ट टाइम एंड द एंड टाइम एंड यू कैन एडजस्ट द प्राइस एंड देन यू कैन ऐड एन अदर डिटेल और उसमें आप उसका डिफरेंट विंडोज टाइम विंडो में आप उसमें पीक रेट और ऑफ पीक रेट्स जो है वो अलग से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, लेटर ऑन वी हैव डाटा रिकवरी ऑप्शन के अगर ड्यू टू कम्युनिकेशन लॉस और समथिंग अगर आपका डाटा जो है वो पोर्टल के ऊपर प्रॉपरली नहीं आ रहा और पोर्टल के ऊपर ड्रॉप जो है वो उनमें डिस्ट्रप्शन है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं और उसको रिकवर करने के लेकिन इसमें एक चीज नोट करने की जरूरत है कि यहाँ पे क्योंकि ये जो डाटा रिकवर हो रहा होता है दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द इन्वर्टर इटसेल्फ. तो इन्वर्टर के अंदर जो डाटा लॉगिंग अवेलेबल होती है दैट इज मैक्सिमम अप टू फॉर अ मंथ और यू कैन नॉट रिकवर योर डाटा लेटर देन a month from the inverter. So uske liye the first step is you have to go to the systems and you will have the option of data modification or data modification mein then the third step is you have to select the plant or usme niche you have to select the device. The fourth one is that is the inverter. Then you have to mention the time duration from which you want to recover the data and then create the task. After creating the task yahan pe ek process shuru ho jayega aur is process se at the right side from this process you can analyze कि जब ये complete हो जाएगा and later on you can see all the lost data on the review window. Okay, later on there is the system securities. यहाँ पे ये मैं जिक्र करूँगा कि Huawei has very much strict regulations about the cyber security and your plant and your
login IDs cannot be changed or cannot be configured from any other resource. तो यहाँ से जैसे change password है तो कोई भी और शख्स जो है not even from Huawei and can change the password. तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि आपको ये भी कुछ clients के issues आते हैं कि किसी यूजर उनके किसी कोलीग के पास ये information थी of the password and the login ID and he has changed the associated email और फिर उसके बाद उनको काफी इसके ऊपर इश्यूज आए. तो इस वजह से ये आप जो इंफॉर्मेशन है ये आप हमेशा जो आपके ऑथेंटिकेट पर्सन होते हैं आप उनको ही हमेशा ये इंफॉर्मेशन जो है वो दें, किसी और पर्सन को अपने न दें ये इंफॉर्मेशन. Next one is the latest feature that we have, that is the plant migration. और plant migration में ये होता है कि जैसे मैंने already इसके ऊपर थोड़ा सा explain किया कि अगर आपके multiple administrative accounts हैं और उसके ऊपर आपने multiple plants को आपके different colleagues ने different plants register कर लिए हैं and then you want to have all these plants on the single portal so that your O&M team can monitor all the plants on through a single ID, तो through a single window. तो उसके लिए फिर आप प्लांट माइग्रेशन में जाके प्लांट्स टैब में आपके पास एक प्लांट माइग्रेट की ऑप्शन होती है और प्लांट माइग्रेट में then you have to create the migrate task. The third one is, the fourth step is you have to select the plants that you want to migrate from a single company to other and then press the arrow and then press next. और इसके बाद ये है कि you have two different options. The first one is the intra company. If different people in the same company have created their accounts and want to migrate the plants, then you can select the intra company. और अगर आप उसमें different companies में अगर आपके plants हैं और उसको shift करना चाह रहे हैं तो फिर आप inter company में जाके select करेंगे. और इसी तरह से targeted company यहाँ पे mention करना है. targeted company आपकी कौन सी है और उसके बाद उस जब टारगेट कंपनी आप मेंशन करते हैं तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होती है कंपनी कोड की. तो कंपनी कोड यू कैन गेट फ्रॉम द कंपनी इंफॉर्मेशन. So okay, this was from my end and I will forward to Ms. Hafsa. Okay, now. Yes, you can start. Okay, thank you, Ansar. I think it was a fruitful discussion, but I would like to take the questions now. I'll start with Talha Ijaz again. Mr. Awais, if you can answer that. The question that he states is, what about different type of inverters that are installed at one site? Let's say we have 5 different inverters like M0, M1, M2, and we can only connect 2 to 3 devices with smart logger. How can we monitor all of these from one point? That's easy if we have some type of inverter that work different models. Surely there is no confusion with our model. If it's M1, M0, M2, M3 and whatsoever it is, if you have smart logger there, you can connect all the inverters in daisy chain with RS485 communication, and you can cover all the inverters on one side with different models on the same platform with same plant. Okay. We have one more. Why solar efficiency decreases with temperature level and now the floating solar panels experience more than other? Not sure about the floating power plants, but for the temperature concerns, of course, it is a limitation with our inverters and with every inverters. If some temperature is raising above a level of temperature that we have in our parameter, like inverters start derating from 35 degrees Celsius to onward to protect the equipment to avoid the burning situation at site. Right, let me see if we have some other. Mr. Ansar, aapse question hai. How much accurate the IV characteristic values are comparing with the conventional devices that we usually use? Yes, it is inaccuracy of 0.5% in the if you are performing the IV curve diagnosis from Huawei Fusion Solar Portal. So it is very much accurate, and as I have mentioned, Huawei is integrating AI based technology
and therefore it has been analyzing the data from with time from different countries and different locations, and its database is configured with all these parameters, so it is very much accurate. Vikas, आपने पूछा था कि if you could have the recorded session, so this recording was recorded and it will be available now on YouTube. Okay, again, Vikas is asking, can it account and indicate module level PIT quality mismatch hotspot? Okay, the first thing, Mr. Vikas, we will have another webinar, and we are planning it purely on the IV curve diagnosis. And if you have any further questions regarding IV curve, you can have better knowledge in that webinar. Actually, this was just about the Fusion Solar portal, how we can configure and how we can set parameters. Okay, I think that's about it. And before concluding, thank you so much for all of you for taking out some time and participating in the session. If you have any other suggestion, like some of them mentioned, any other suggestion regarding any other topic, obviously you can message on the socials, and the other webinars can be arranged as well. Thank you so much for the panelists, all of you who participated and gave us such an insightful discussion and understanding how to manage our own portal with and monitor our solar power plants. So I guess that's about it. Thank you so much again, everyone. And the webinar would again be in the 15 days. Until then, Allah Hafiz.